Hello all candidates. So one candidate joined for the exam analysis of all MT and design training. तो ये बताएंगे इनका पेपर कैसा रहा ओवरऑल. Paper was good. Was one of three sections. Firstly was the English section and reasoning, current affairs, and the disciplinary section for 100 marks. Yeah. Your branch? This is computer science. Computer science. Okay. Sir, I have opted every questions. 100 out of 100. Yeah, No negative marks in that no one? negative marks. Okay. Okay. What about logical reasoning and English? So The it 40 marks was का easy. I will consider the paper easy to moderate. easy to moderate. Yeah. Okay. What about first section? General awareness? General awareness will little bit means questioning because we are not, it means we don't Used to. used to the general awareness that much. So do you remember any question after 20? कुछ भी याद है आपको? Sir, I remember that one was the office of patent office. Okay. Patent office कहाँ पे situated? Headquarter वगैरह something like? Yeah, so I was little confused in that question. Okay. And Next. one question was, Like related to any current affair? 2093? and one was like Commonwealth writer, Commonwealth of Okay. cricket Amartya writer. Sen. Amartya Sen कौन? Yeah, that was also the question. Amar Sen was got Nobel Prize in which year? Which year? I don't remember much questions now. चलो आप कंक्लूड कर दो. ओवरऑल पेपर एक्सपीरियंस इजी मोडेड हार्ड क्या कहेंगे? Sir, the paper was easy to moderate. इजी टू मोडेड. Because we are used to the disciplines, computer science, Yeah. I have opted all questions. And for general awareness and there was no negative marking, so I opted all questions, but I was Total number not of sure about. programming questions you have asked? Programming was Java something like. no. All there was a like Only one to one? yeah, no chart. Flowchart. Algorithm question किसी आगे? Yeah, computer Complexity time complex है. What about computer network? was yeah 2-4 questions. Questions is where of easy to moderate level actually, and it is more conceptual based, not a practical, and it's not a calculative one. Okay. It's just a theoretical part. The level of question is just below the gate. Below the gate. Below the gate. Okay. Actually, if we see the last year paper of gate, this year also, and we can realize that the question is of easy level, Easy level. and aptitude is the one or two of the questions are not understandable what they are saying, but most of the questions are easy. And Your branch is I appeared for the management training of CS branch, computer CS science branch. Okay. Computer science. There were 100 questions. These are all belongs to the computer science background, and they are quite easy. Your attempt out of 100 Out of I attempted 98 questions. 98 क्वेश्चन. कुछ क्वेश्चन याद है आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट से? हाँ, सबसे ज़्यादा देखने को मिले लाइक मेनली क्वेश्चंस आपको डेटाबेस से दिखेंगे. डेटाबेस से क्वेश्चंस थे. मेनली आपको जैसे टर्बुलेशन हो गया, ओके. डिफरेंशियल इंटीग्रिटी, डेटाबेस. स्पेशलिटी तो उतना नहीं, बट मेनली ज़्यादा क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे ना जो डेटाबेस से रिलेटेड है. जैसा ये डेटाबेस में अगर आपका कौन सा है जो ऑप्शन है वो सही है, सब कह सकते हो ना, या इसमें टपल्स के ज़्यादा यूज़ होंगे रिलेशन टपल्स वगैरह क्वेश्चन जाते हैं. उसका ज़्यादा व्हाट अबाउट ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन? OS से ज़्यादा नहीं बोल सकते हम लोग. ज़्यादा वैसे पेजिंग से एक दो क्वेश्चन मुझे दिखे. दो क्वेश्चन. पेजिंग से एक दो क्वेश्चन दिखे. दैन उसके बाद आप जाओगे तो नेटवर्किंग से एक क्वेश्चन था कि कौन से जो IP एड्रेस है वो कौन से क्लास से बिलोंग करता है. ओके. क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी का ही था. क्लास सी का था वो. 193 वाला वो क्लास सी का ही आता है. ओके. देन फिर आप आओगे तो OS तो हो ही गया, नेटवर्किंग भी हो गया. देन कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे ना कि जो आपको बेसिक्स थे कंप्यूटर, जो गेट के सिलेबस में नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस है. जैसा आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कुछ क्वेश्चन थे, 3 से 4 क्वेश्चन उसके थे. ओके. मतलब बेसिकली सारे क्वेश्चन OS, DB, CN से एक दो क्वेश्चन मिक्स, एंड TOC से कुछ क्वेश्चन थे अच्छे से क्वेश्चन. व्हाट अबाउट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस? Numericals, अप्रोक्सीमेटली कितने आते हैं न्यूमेरिकल? न्यूमेरिकल्स आपके जो थे ना वो COA के थे, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के थे. ऑर्गेनाइजेशन. वो 3 से 4 वाले थे, जैसा पेज साइज होता है, पेज सेगमेंट वो सब, वो सारे क्वेश्चन थे 3 से 4 क्वेश्चन. ओके. मोस्टली आपको थ्योरेटिकली मिले. थ्योरेटिकल क्वेश्चन था. और GS जो था वो थोड़ा यूनिक 20 टाइप का marks था. हाँ, 20 मार्क्स के थे, थोड़े यूनिक थे. यूनिक क्या होंगे? यूनिक इन द सेंस आपको ऑर्गेनाइजेशन दे दिया, ये ऑर्गेनाइजेशन कब बिल्ड हुआ था, ओके ओके ओके. इस ऑर्गेनाइजेशन का न्यू नेम कब रिफॉर्म हुआ था वो आप बताओ, Okay. किसने रिफॉर्म किया था. काफी थोड़ा ट्रिकी था ठीक था. क्योंकि आपको उसमें देखना ऑर्गेनाइजेशन के नेम याद रखना, नहीं याद नहीं पड़ा. वो उसमें प्रॉब्लम्स में ना आ रहे थे. Okay. और जो FT का पार्ट था वो हार्ड नहीं था. करंट अफेयर आया तो 23 का आया था. नहीं, 23 के नहीं थे, 2022 के थे, एक दो टू के थे. क्वेश्चन. बाकी सभी स्टार्टिंग और हिस्ट्री से थे. 21, 22 2-3 क्वेश्चन के थे, बाकी पुराने वाले थे. ओके. चलिए आपका FT पूरा कैलकुलेटिव आपकी थोड़ा थोड़ा सा था, मतलब
1 मिनट आपको क्वेश्चन समझने लगेंगे, पर क्वेश्चन यहाँ 1 मिनट से भी कम टाइम। एग्जैक्टली थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, मतलब एक क्वेश्चन आपको 1 मिनट से सॉल्व करने में लग सकते थे कुछ क्वेश्चन, लग सकते इससे बाकी इजी थे। ओके। थोड़ा बहुत रीडिंग कंप्रेंशन इंग्लिश में इंग्लिश में एक पैसेज था जिसके 4 क्वेश्चन थे, 4-5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन थे, जिसमें से एक क्वेश्चन तो काफ़ी इजी था, वो फर्स्ट लाइन में आपको आंसर दिख जाएंगे। बाकी 3 के लिए स्टोरी कुछ याद है आपको? स्टोरी बेसिकली था जैसा जो बच्चों के लिए होता है ना, डाइट, ओके, जो मेटल से वगैरह, सीरियल्स वाले, ओके कि जैसा बच्चे को स्टार्टिंग में जो उनको खाना देते हैं वो किस टाइप का हमें फूड उनको देना चाहिए, ओके। कौन सा डॉक्टर डिस्क्राइब करते हैं, वो सारा उसमें कुछ था। चलो लास्ट में कंप्लीट करके पेपर कर रहा है, इसी मॉडल का हटता है। पेपर अगर अकॉर्डिंग टू टाइम मैनेजमेंट कहें तो मॉडरेट लेवल होगा, ओके, और अगर कंटेंट के थ्रू कहें तो इजी लेवल होगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा टाइम लग रहा है। टाइम लग रहा है। ओके, एनी सजेशन वीड लाइक टू गिव अदर्स फॉर नेक्स्ट ईयर? सजेशंस तो यही रहेंगे ना कि आप जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है ना उस पर ज़्यादा ध्यान दो, ना कि न्यूमेरिकल पार्ट में। ओके, कि न्यूमेरिकल आपके हो जाएंगे अगर आपको बेसिक आता होगा तो, या क्योंकि वो ना थोड़ा डीप जा रहे हैं क्वेश्चन में। ये ऐसा होगा, अगर ये ना होता तो ये कैसे हो सकता हाँ, था। कंसीडर करने बोल रहे हैं, एज्यूम करने बोल रहे Assume हैं। बोल रहे हैं कि ये दिमाग लगाओ। एज्यूम करो तो क्या आंसर आपका आएगा वो चीज़। पेपर मेरा काफ़ी अच्छा रहा, और मैं बोलूँगा कि इस बार हो सकता है कि डिसाइडिंग फैक्टर शायद जीके ही हो जाए, जीके हो जाए, क्योंकि जो जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन है उसमें कुछ क्वेश्चंस टफ थे, क्योंकि वो लोग नहीं पढ़कर आते जनरली इंजीनियरिंग वाले। बाकी जो एप्टीट्यूड वगैरह था वो काफ़ी इजी था, और जो टेक्निकल वाले थे वो ज़्यादातर थियोरेटिकल साइड पर थे, न्यूमेरिकल्स कम थे और थियोरेटिकल पर ज़्यादा थे, तो टाइम आदमी के पास ज़्यादा था कि वो क्वांटिटेटिव और वो सबको सॉल्व कर सके। तो मेरे हिसाब से फिर आप ऐसा देखा जाए तो जनरल अवेयरनेस जिनका सही रहेगा उनके लिए बेहतर है, एंड आपको एक्यूरेट भी होना है आंसर्स में, क्योंकि कहीं कहीं पर थोड़ा लेंथी कैलकुलेशन था, बट ओवरऑल पेपर बहुत ही बैलेंस था, विद इन टाइम के अंदर हो सकता था, और कट ऑफ तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि काफ़ी हाई जा सकता है। यस, आप बोल रहे हो कि जो जनरल अवेयरनेस 20 मार्क्स के लिए पूछा गया था, हाँ उसमें बहुत डिफिकल्टी आई है, क्या कुछ क्वेश्चन याद है आपको? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल क्वेश्चंस थे, जैसे CGPDDM का जो पेटेंट ऑफिस है वो किधर है, ओके, उसका आंसर है न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली न्यू दिल्ली उसका हेडक्वार्टर है। फिर क्वेश्चन था कि जैसे योग्यता है वो कौन से मिनिस्ट्री ने बताया, HRD ने बताया कि एजुकेशन ने बताया, तो स्किल डेवलपमेंट किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। फिर आपके बहुत सारे सीवीड मिशन, फिर एक कंफ्यूजिंग ऑप्शन था कि फिशवीड ये फिशरीज के मिनिस्ट्री थी या साइंस या एनवायरनमेंट के था, इस पर एक क्वेश्चन था। बाकी और कुछ थे जिसमें कि आर्टिकल्स के डेट्स वगैरह थे, बट उनको भी क्लेवरली गेस किया जा सकता था। कैसे कि मानसून सेशन होता है, विंटर सेशन होता है पार्लियामेंट का, उसके डेट के हिसाब से अगर आप गेस करते तो आप कर सकते थे, एलिमिनेट कर सकते थे। ओवरऑल एक सोच के लिए आपको दे दी गई थी कि आप कुछ तो दिमाग लगाकर सॉल्व कर सकते हैं, तो इसलिए मैं पेपर को तो बहुत अच्छा बोलूँगा। और सिंस नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तो बेहतर रहता कि सब लोग सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए, तो इसलिए कट ऑफ भी ऊपर जाने का इसलिए मुझे तो उम्मीद है। और 160 में अराउंड अगर 2/3 से तो ऊपर ही रहेगा कट ऑफ मिनिमम तो 2/3 से तो ऊपर रहेगा ही रहेगा, और उससे भी ऊपर 75% तक जा सकता है मेरे हिसाब से। कौन से सब्जेक्ट में, जो टेक्निकल की बात कर रहा हूँ मैं, इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन में निकला POC, कंप्यूटर नेटवर्क, DBMS, नहीं क्वेश्चन बैलेंस है, Balance बैलेंस है। तो पर्टिकुलर में भी ये सबसे ज़्यादा पूछा गया था? नहीं Balance है, क्वेश्चन ऑलमोस्ट इक्वल। इक्वल। तो जो भी गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और स्पेशली थ्योरी उनकी अच्छी है, उनके लिए तो अच्छा पेपर गया होगा। ओके, कुछ न्यूमेरिकल्स आए थे टेक्निकल में? हाँ न्यूमेरिकल्स थे, बट काफ़ी इजी साइड पर थे, बहुत इजी साइड पर। OS से पेजिंग से रिलेटेड थे, फिर सम मिन टर्म्स, मैक्स टर्म्स ऐसे करके थे डिजिटल में, और थोड़े बहुत इजी टाइप के थे। लॉजिक गेट्स वगैरह थे, एंड गेट्स और गेट्स थे, उसके सिंपल सर्किट दे दी गई थी। बाकी उसके बाद आपका था कि क्या वेलाडीज एनोमली पर क्वेश्चन था, सिंपल थ्योरी, FIFO का था, रिप्लेसमेंट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। फिर DP और ग्रीडी में क्वेश्चन था कि कितना मैक्स वैल्यू होगा, नैपसैक प्रॉब्लम का था एक क्वेश्चन। तो बस इस तरह के क्वेश्चन थे CS में। Hello everyone, my name is Indiadeep and I'm basically a graduate, CS graduate. So it's actually a very nice and Yeah, computer science, right? You told Yes. that you are from computer science branch. Yes. So उसमें टेक्निकल क्वेश्चन 100 क्वेश्चन आए थे, राइट? Yes. इसके बारे में कुछ डिटेल में बता पाएंगे? टेक्निकल क्वेश्चंस जो थे वो मेरे ख्याल से, मेरा मानना है इस साल जो ये क्वेश्चन था, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखे थे, और तो बेसिकली मेरा इस साल मानना था कि जो बच्चे अभी ग्रेजुएट किए हैं तो उनके हिसाब से ये बहुत ज़्यादा आसान था। क्योंकि अभी का क्वेश्चन जो था और जो अभी ग्रेजुएट होकर निकले हैं उनके लिए ये कहना बिल्कुल सही होगा कि बिल्कुल पकड़ के लिए था। ठीक है, तो ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स, ऐसा कुछ नहीं था, बेसिकली अबव एवरेज था। Above average. जी, Do you कोई remember any questions?
जैसे मैक्सेसे अवार्ड है वो किन के ऑनर पे रखा गया है, उस तरह के क्वेश्चंस थे। या फिर बेंगलुरु बुल्स एक चैंपियनशिप होती है, वो एक्चुअली किस चीज़ के बास्केटबॉल है, क्या बिलोंग करता है? मेरे ख्याल से मे बी स्नूकर स्नूकर। शायद, हम क्योंकि सर ऑलरेडी ये नहीं है। अब हम बात करें नेक्स्ट सेक्शन से, इंग्लिश रीजनिंग पूछा गया जी, उसके बारे में बताइए। रीजनिंग पेपर क्या था, डिफिकल्टी लेवल इजी, मॉडरेट, हार्ड, क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से मॉडरेट से अगर एक लेवल थोड़ा ऊपर करते थे। रीजनिंग कोई ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था, डूएबल तक कर सकते थे। बिल्कुल कर सकते थे। ओके, और अब रीजनिंग के बारे में बताएं कुछ डिटेल में क्वेश्चंस। रीजनिंग्स के क्वेश्चन थे वही बेसिकली इडियम्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स और पैसेज के हिसाब से। रीडिंग कंप्रीहेंशन कितने का, 5 का सेट है, 10 का सेट है? कंप्रीहेंशन चार क्वेश्चन का, या कौन से इंग्लिश रीडिंग कंप्रीहेंशन? नहीं, इसका तो नहीं पता। ओके ओके, लेट इट बी। मैं रीडिंग कंप्रीहेंशन स्टोरी की बात कर रहा था, राइस और सरल। अच्छा, वो सिर्फ एक्चुअली वो सिर्फ एक ही था। एक ही था नहीं, एक ही था, चार क्वेश्चन उसमें 3 क्वेश्चंस थे नीचे में। वो पैसेज था, उसमें क्वेश्चंस 3 हाँ थे। एग्जैक्टली, वो बात कर रहा था। ओके, तो आप कंक्लूड करो अकॉर्डिंग टू यू एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाने वाले हैं? और मेरे ख्याल से तो शायद बेसिकली प्रीवियस ईयर 135 थे 135। शायद। ओके, प्रीवियस सेशन यू लाइक टू अदर एस्पायरिंग किए जो जाने वाले। नेक्स्ट में जो कोई रिग्रेट होगा आपको? रिग्रेट ये था कि मेरे ख्याल से और ज़्यादा टॉपिक्स कवर कर सकते थे पढ़ते वक्त, जो नहीं किए इस बार। और बेसिकली अभी नए हैं तो ये मेरी तरफ से भी है, और ऐसा कुछ तो बहुत ज़्यादा नहीं है आपको कहने के लिए, लेकिन मेरे ख्याल से कहना चाहिए कि क्या कहें सो कि जो आप अभी तक मतलब यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम देते हैं या फिर सेमेस्टर्स के एग्ज़ाम देते हैं, उस हिसाब से ये काफ़ी अलग है। So aspirant, this was the exam analysis and review of all MT and DT. So let me your number of attempts or questions कुछ particularly आपको याद होंगे तो comment box में लिखोगे। And if you're new to this channel, click on the subscribe button और notification bell। और हाँ, इस वीडियो को शेयर के जितने भी aspirant ने एग्जामिनेशन दी है या फिर आपके कोई जूनियर्स होंगे उनको आप शेयर कर सकते हो, so that it will be beneficial for them, right?